So, today we'll be discussing your last topic of this chapter, that is challenges ahead. So, up till now we have already read that how government has made tremendous efforts to eradicate poverty. There were various anti-poverty schemes, there were various anti-poverty measures that you read, but you, apart from that, you also read that despite the number of efforts made by the government, the poverized population has not reduced to the amount as it was expected. Okay, so this you have also read the reason why, because of the corruption, because right people whom it should benefit has not benefited. People are unaware in India. So apart from that, today we'll be reading a new topic, that is the challenges ahead. So we have read that poverty, that is providing food, shelter and cloth, is important, but apart from that पॉवर्टी के बाद भी और भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में. सो लेट अस सी. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. So, India's most compelling challenge is what? That is reduction of poverty. So, पॉवर्टी हैज़ सर्टनली डिक्लाइन इन इंडिया. पॉवर्टी की पॉपुलेशन जो है, पॉवराइज पॉपुलेशन जो है, वो डेफिनेटली डिक्लाइन तो हुई है इंडिया में, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत ही कंपेलिंग प्रॉब्लम है. ऐसी प्रॉब्लम है जो यू कैन से अ मूविंग प्रॉब्लम है, जो अचीव कर ली जाती है, फिर प्रॉब्लम वापस अराइज कर जाती है. ऐसे नहीं है कि कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुई है. नाउ, wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. So, बहुत डिस्पैरिटी है. ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स में या रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में बराबर पॉवराइज पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है. कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है. Certain social and economic groups are most vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to high economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of women and the economically weaker section of the society. So poverty reduction is very very important for India, और बहुत ज़रूरी है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, इंडिया तब तक प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक वहाँ उसकी पॉवराइज पॉपुलेशन रिड्यूस नहीं होगी. ठीक है, लोग जो है वो पुअर रहेंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में ही अपनी सारी अर्निंग्स को लगा देंगे. दे विल नेवर कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम. सो देयर आर सम वेज दैट गवर्नमेंट हैज़ फाउंड आउट. कुछ तरीके हैं जिनसे पॉवर्टी की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोज वेज. First is by increasing stress on universal free elementary education. सारे बच्चों को elementary education means class 8 तक की education free करा दी जाए. ये एक हमारी fundamental right भी अब हो चुकी है, right to education. ठीक है, right to education में every child gets free education till its elementary level. ठीक है, 8 तक सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट. अगर फैमिली में एक पर्सन अर्न कर रहा है, उस पर 4 डिपेंडेंट हैं, डेफिनेटली फैमिली की मैक्सिमम इनकम जो है वो फीड कराने में वेस्ट होगी. सो फॉर दैट व्हाट इज़ इट नेसेसरी दैट अ वुमन इन द फैमिली शुड ऑल्सो वर्क. अगर वुमेन अर्न करती है, दैट एड्स टू द इनकम ऑफ द फैमिली. नाउ नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्लाइन करना. पहले क्या होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे. सो इफ़ यू हैव मैनी किड्स, यू हैव मैनी माउथ्स टू फीड. बहुत सारे बच्चों को आपको फीड करना है, उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखना. अगर 1 या 2 बच्चे हैं, देन द कॉस्ट इज़ लेस. ठीक है, कम पैसों में भी बहुत बेहतर अपब्रिंगिंग दी जा सकती है. The economically weaker section of the society. So empowering not only women but also the economically weaker section. ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाना, उनको अवेयर कराना और कोशिश करना that everybody should be employed. Now, the official definition of poverty, however, captures only a limited part of what population really means to people.
It is about a minimum subsistence level of living, rather a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. So अगर आप देखेंगे concept of poverty क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है, मिनिमम जितने कम से कम में लोग जी सके, खा सके, रह सके, शेल्टर और क्लोथ प्रोवाइड कर सके। अगर उससे कम है तो पॉवराइज है, अगर उससे कम नहीं है तो अगर उससे कम नहीं है उतना है तो वो अबव पॉवर्टी। ये है हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन है। बट मैनी स्कॉलर्स दे एडवोकेट कि इसे ब्रॉडन करना चाहिए, ठीक है, मिनिमम नहीं, रीजनेबल लेवल रहनी चाहिए। इतना तो दो कि वो समाज में जैसे अभी उनकी कंडीशन है फ्यूचर में वैसी कंडीशन ना हो, द थिंग शुड इम्प्रूव। सो दिस इज़ वन दैट दे एडवोकेट। हमारा जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी का वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही ऐसा डेफिनेशन है जिसमें कि केवल बेसिक नीड्स को कंसिडर किया गया है। हैज़ बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, but do they have education or shelter or health care or job security or self confidence? Are they free from caste and gender discrimination? Is the practice of child labor still common? Worldwide experience shows that development, the definition of what constitutes poverty also changes. Okay, so हमारी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है उसमें केवल फूड से रिलेटेड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉलर्स दे ऑल्सो एडवोकेट दैट ठीक है उनके पास खाने को है, बट क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या ऐसा सिचुएशन है दैट इन फ्यूचर दे मेक देयर लाइफ बेटर? डू दे हैव शेल्टर और नॉट? ऐसा तो नहीं कि वो फीड कर ले रहे हैं बट दे डू नॉट हैव शेल्टर टू लिव। आर दे प्रॉपर विद देयर हेल्थ? क्या उनकी हेल्थ सही है? क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी है? ठीक है, आज जहाँ काम कर रहे हैं क्या ऐसा सिक्योर्ड उनका जॉब है कि आज काम कर रहे हैं फ्यूचर में भी वही काम करेंगे? क्या जॉब सिक्योरिटी है? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? ऐसा तो नहीं है कि एक पुअर फैमिली जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बेयर कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स कास्ट? या ऐसा तो नहीं है कि पुअर फैमिली में बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और गर्ल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है? सो ऑल दिस शुड बी केप्ट इन consideration while writing down और by explaining poverty. पॉवर्टी केवल खाने से रिलेटेड नहीं है बट फूड, नॉट ओनली फूड बट क्लोथ, शेल्टर, रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब का एक मिला जुला टर्म होना चाहिए। इट शुड नॉट फोकस ओनली ऑन फूड। हम भी जब कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं गरीब जैसे ही हम बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास खाने को नहीं है, ठीक है। गरीब वो भी है जिसके पास खाने को है बट पढ़ाई नहीं है, वो चाह के भी अपनी लाइफ को बेटर नहीं करा पा रहा, ठीक है। उसके पास खाने को तो कहीं से अरेंज हो गए बस, बट उसके पास शेल्टर नहीं है, क्लोथ्स नहीं है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी शुड बी नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर बट इट शुड फोकस ऑन ह्यूमन पॉवर्टी। एक आदमी की क्या क्या नीड्स है, एक ह्यूमन बीइंग की क्या नीड है, उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, ठीक है। पॉवर्टी को ख़त्म करना एक मूविंग टारगेट है। पहले फूड थी, अब फूड सिक्योरिटी हो गई तो लोगों को अब क्लोथ्स और शेल्टर नहीं है तो भी पुअर है। हो सकता है फ्यूचर में क्लोथ और शेल्टर हो जाएंगी तो एजुकेशन नहीं है तो पुअर है, हेल्थ केयर नहीं है तो पुअर है। ओके, सो इट्स अ मूविंग टारगेट। ओके, नाउ hopefully we'll be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by end of the next decade. But the target will move on for many of the bigger challenges that still remains, providing health care, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor. This will be even bigger tasks. Okay, so खाना प्रोवाइड कर देना इज़ एन ईजी टारगेट, बट सबको जॉब प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों की माइंडसेट को चेंज करा के कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना इज़ अ मच बिगर चैलेंज दैट इंडिया माइट फेस इन फ्यूचर। सो फूड सिक्योरिटी इज़ अ वेरी मिनिमम टारगेट दैट इंडिया हैज़
been able to achieve. There are number of things which still India has to achieve. बहुत सारे टारगेट्स हैं जो इंडिया को अचीव करना है. बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सिक्योर करना कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा करें, और अगर कुछ अच्छा कर लेते हैं तो उन्हें जॉब प्रोवाइड करना. जॉब प्रोवाइड करने के बाद जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. ऐसा नहीं कि हायर और फायर बेसिस पे जॉब हो. आज आपको रख लिया गया, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ये ना हो. और अगर जॉब प्रोवाइड हो गई, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई, तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट वर्क के लिए देना. साथ ही साथ ये देखना दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड. गर्ल्स enjoy same responsibility or equal responsibility and opportunities as boys. So these are some of the targets that still India has to achieve. So this was all about your economics. We are done with the book. So as a written homework, you will be writing these question answers in your copy, and you will submit when next we ask you to submit, as well as in the online class we will be discussing about this question answer. Thank you so much.